Hello, students. Today I'm going to start the theories in the covalent. Basically, two theories how to explain covalent bond is the valence theory. It is the as in the covalent bond is formed by the pairing of the major those atoms in the Ma'am, your voice is not clear. voice is not यहाँ तो बेटा भी चल रहा है अभी क्लियर है Yes, ma'am. Okay. So, I'm going to start with one theory. Let's one theory to explain the covalent bonding. Covalent bonding in the molecule atoms to that is explained on the two theories put forward. First theory is the bond theory. This valence bond theory was proposed by John London in 1927 and later was extended calling it so first देखिए हेडली कॉन्सेप्ट के कि कोई बॉन्ड कैसे होगा फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड टू कंबाइन must closer to each other so that one overlap that of the center. यानी कि कोई मैम फाइंड लैग हो रहा है। मैम लैग हो रहा। फाइंडिंग मैम लैग हो रहा है मैम। बट ये क्या कर सकते हैं तो अब वो भी पूरा ओपन में मैम Now सुनाई you नहीं can दे रहा just मैं turn कुछ off भी the आवाज नहीं आ camera, रही। then it will work fine. Okay, so it was a concept कि from the covalent bond to combining atoms must come together so that how one over यानी कि दो combining atoms पास आ जाए इसमें क्या हो जाए मैम कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नहीं समझ आ रहा वॉइस क्लियर नहीं है। हेलो मैं ऑडिबल अभी आ रही थी नो मैम नहीं आ रही है नो चलो मैम। स्टार्ट clear for the covalent relation to combine atoms must come closer to each other. मैम लैग हो रहा है मैम कुछ भी समझ मैम, नहीं आ रहा ब्लूटूथ है। में काफी ज्यादा लैग हो रही है वॉइस आपकी। चलो बाहर आते हैं। हेलो अभी आ रही है यस मैम। यस मैम। okay so I'm going to start the valence bond theory के valence bond theory basically to explain the covalent bond formation. So covalent bond formation can be explained on the basis of two theories or you can say the two theories are put forward to explain the covalent bond, and these theories are the valence bond theory and the molecular bond theory. Okay, so we start with the valence bond theory.
So first of all, this theory, valence bond theory, was proposed by the Hitler in London in 1927, and later is more extended by the Pauling and Slater. So first we'll discuss the concept given by the Hitler in London. Hitler in London gave the concept. We will discuss point wise. The first is that for the covalent bond formation, two combining atoms must come closer to each other so that orbital of one overlaps with that of other. यानी कि कोई भी जो एटम जो जिनके बीच में कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म हो रहा है वो तब बॉन्ड फॉर्म होगा जब वो इतना पास एक दूसरे के हो जाए कि उनके ऑर्बिटल्स जो है वो ओवरलैप हों. And these overlapping orbitals must have two things are here. One is the unpaired electron and second is the anti-spin electron. यानी कि जो दो ऑर्बिटल ओवरलैप इलेक्ट्रॉन एंड एनवेलोप. Hello. Okay, these orbitals Yes. must have unpaired electron and anti-spin electron. यानी कि जो दो unpaired electron होंगे उनकी spin probability should be empty. एंटी का मतलब क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज. इसके बाद द न्यू लोकलाइज्ड बॉन्ड ऑर्बिटल इज फॉर्म्ड ड्यू टू द ओवरलैपिंग. और ये जो ओवरलैप पार्ट है इट हैज मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन. दिस ओवरलैप पार्ट हैव द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन. यानी कि जो ओवरलैप पार्ट है ऑर्बिटल का जो आपका शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो कहां पर होगा, इसी ओवरलैप पार्ट में होगा. And the formation of covalent bond is due to the electrostatic attraction between nuclei and accumulated electron clouds and the attraction between spin of anti-spin electron. यानी कि जो कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वो किसकी वजह से, जो न्यूक्लियाई है, न्यूक्लियाई और उसके जो चारों तरफ सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन वर्क कर रहा है, और दूसरा जो एंटी स्पिन इलेक्ट्रॉन्स है उनके बीच में जो अट्रैक्शन वर्क कर रहा है, इसकी वजह से देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड. और स्ट्रेंथ किस पर करेगी, तो ग्रेटर द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ग्रेटर विल बी द अट्रैक्शन. जितना ज्यादा ओवरलैपिंग होगा उतनी ही ज्यादा क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. और जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा उतना ही बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी एंड स्टेबिलिटी ऑफ बॉन्ड एंड लेसर द बॉन्ड लेंथ, और बॉन्ड लेंथ उतना ही स्मॉल है. ठीक है, यानी कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा होगा, जिसका बॉन्ड लेंथ सबसे कम है. क्योंकि बॉन्ड की स्ट्रेंथ किस पर डिपेंड करती है, द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड डिपेंड्स ऑन द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग. So more the extent of overlapping, more will be the attraction, more will be the bond energy, more will be the stability of bond, and lesser will be bond. Now, beta, share the second screen, second page of PDF. अंशुमन सेकेंड पेज शेयर करो बेटा. अब देखिए इसके बाद दिस थिंग वाज एक्सटेंडेड बाय द पॉलिंग स्टेट. एक्सटेंट देखिए हिटलर इन लंदन ने किया था, व्हाट ही से कि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग लीड्स टू द बॉन्ड स्ट्रेंथ. लेकिन विच फैक्टर्स are responsible for the extent of overlapping, it was not explained by the Hitler in London. So Pauling and Slater extended this theory with the extent of overlapping depends on number one, the nature of orbital involved and the type of overlap. Nature of orbital, जैसे जो सिमिलर एनर्जी के ऑर्बिटल्स होंगे जिनकी सिमेट्री और एनर्जी लगभग सेम होगी, वो जो है आपस में ओवरलैप ज्यादा करें. जैसे कि वैलेंस शेल क्लोजर टू द न्यूक्लियस, हायर इज द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग एंड बॉन्ड एनर्जी. जो शेल पास होगा, जितना क्लोज होगा, उसका एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा होगा, उसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी. लाइक वन शेल अगर ओवरलैपिंग करते हैं इन दो एटम के वन शेल की बॉन्ड एनर्जी विल बी ग्रेटर देन द 1 2 2 विल बी ग्रेटर देन द 2 3 एंड इट विल बी ग्रेटर देन द 3 3 शेल. यानी कि जो शेल न्यूक्लियस के पास है दैट इज कंसीडर्ड एज फर्स्ट शेल.
न्यूक्लियस से जितना दूर जाते जाते हैं तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ स्टेज, तो जितना न्यूक्लियस के पास होगा उतना ही ज्यादा एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होगा, उतनी ज्यादा बॉन्डेड होगा। एंड सब शेल्स हैविंग सेम एनर्जी लेवल more directionally concentrated show the higher extent of overlapping। ठीक है, जो सब शेल्स जिनकी एनर्जी लेवल लगभग सेम है, जैसे एस ओवरलैपिंग करेगा तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग विल बी मोर एज कंपेयर टू द एसपी ओवरलैप। यानी कि जब सिमिलर सब शेल्स सेम एनर्जी लेवल के शेल्स जब ओवरलैप करेंगे देन एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग विल बी मोर। जैसे कि एग्जांपल इज गिवन the s orbital is spherically symmetrical shows only head-on overlapping। और दूसरा पॉइंट जो दिया था कि extent of overlapping depends on the type of overlapping। ये तो है नेचर ऑफ ऑर्बिटल इन्वॉल्व। और दूसरा टाइप ऑफ ओवरलैपिंग देखिए, ओवरलैपिंग दो तरह से हो सकती है। वन इज द हेड-ऑन ओवरलैपिंग एंड सेकंड इज द साइडवेज ओवरलैपिंग। हेड-ऑन ओवरलैपिंग इज आल्सो कॉल्ड एज एंड-टू-एंड ओवरलैपिंग। अंशुमन बेटा क्यों शेयर नहीं हो रहा है? Hello, am I audible? Yes, ma'am. Ma'am, I will going to again say it. Okay. Second page of PDF. So this S is overlapping is spherical shape. So it shows only head-on overlap. And p orbital is directionally concentrated. P में देखिए p के p x p orbital के होते c होते p x p y p z. So these are the directionally concentrated. एक p orbital के होते p में कितने c होते हैं? p सबशेल में p orbital p x p y p z. डबल शेप होता है इसका। तो px जब when directionally these two orbitals are directionally concentrated, तो head-on overlapping होगी, then shows the more overlapping। जैसे px जब कंबाइन करेंगे तो head-on overlapping होगी, extent of overlapping will be more। और जब आपके pz overlap करेंगे तो क्या होगा? There will be sidewise overlapping, तो extent of overlapping will be less। When there is a head-on overlapping or end-to-end overlapping, the bond form is called the sigma bond. When there is sidewise overlapping, the bond form is called pi bond. So sigma bond is formed by the end-to-end or head-on overlapping. The extent of overlapping is more. That's why sigma bond is strong bond. Then the sigma bond is a stronger bond than the pi bond, because pi bond formation takes place by the sidewise overlapping of p orbital. And extent of overlapping is less in sidewise overlapping. That's why this pi bond is p bond, and this pi bond is always formed in associates. Hello? Hello, am I Ma'am. audible? Yes, ma'am. So Yes, the ma'am. sigma bond is always formed in association with, sorry, pi bond is always formed in association with sigma bond. पहले sigma bond बनेगा, then pi bond. So this pi bond is weak. So in a double bond, there is a one sigma bond and one pi bond. In triple bond, one sigma bond and two pi bonds. So bond length किसकी कम होगी? Bond length जो है वो triple bond की सबसे कम होगी। It will be strongest. Double bond, triple bond. बीच बीच में वॉच कर रही है। मैम px और py को ओवरलैप कराएंगे तो कौन सा ओवरलैपिंग होगी, साइड वाइज या हेड ऑन? It is formed by the overlapping of two shafts and orbitals along the internal
internuclear axis. That is the line passing through the center of nuclei of the two atoms involved. It is known as sigma bond. It is always formed by the end-to-end or head-on overlapping. The sigma bond is formed in case of the SS overlapping, SP overlapping, PP overlapping along the same axis. ठीक है, और रिलेटिव बॉन्ड डिस्टेंस किसकी, कि जो PP होगा उसमें क्या होगा, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग जो है सबसे कम होगा, तो बॉन्ड लेंथ इज बॉन्ड डिस्टेंस 3. SP 1.7, सॉरी ये सिग्मा की बोल रही थी, PP बॉन्ड विल बी मोर स्ट्रांग क्योंकि ये आपका डायरेक्शनली कॉन्सेंट्रेटेड है ऑर्बिटल्स, so extent of overlapping will be more. So PP will be greater, will be stronger than the SP, then SS overlap. Next is the pi bond. As I already told you that the pi bond is formed by the sidewise or lateral. Can you again tell the relative strength of these bonds again, please? Okay. Relative bond strength की PP is greater than SP is greater than SS. PP में क्या है, देखिए अभी आपको क्या बताया कि एक्सटेंट ओवरलैपिंग किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑर्बिटल इन्वॉल्व्स एंड एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप. तो जो भी आपके डायरेक्शनली कॉन्सेंट्रेटेड ऑर्बिटल्स होंगे दैट विल शो मोर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग. तो इन केस ऑफ PP, SP and SS, PP क्या है आपका, PP में सिग्मा बॉन्ड जो है, सिग्मा बॉन्ड व्हिच इज फॉर्म्ड बाय द PP ओवरलैपिंग, इट विल बी फॉर्म्ड बाय द एंड टू एंड और हेड ऑन ओवरलैपिंग. तो दिस विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट. उसके बाद SP, उसके बाद SS. So this is the relative bond strength. Next is the pi bond. Pi bond, already I told you that it is formed by the sidewise overlapping. यानी कि कोई भी जो हाफ सेल ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे, उनमें साइडवाइज ओवरलैपिंग की ओवरलैप करेंगे, then this bond is called as the pi bond. So this pi bond is weak bond and it is always present in addition to the sigma bond in molecules, double and triple bond. And pi bond shortens the internuclear distance. यानी कि pi bond जब बनता है तो bond क्या होता है और strong हो जाता है. Some examples are given here. SS orbital. SS orbital is spherical in shape. हेलो. Hello. यस मैम, जब PX और PY ओवरलैप करेंगे तब क्या होगा क्या? मैम PX और PY. PX और PY बेटा कैसे ओवरलैप करेंगे? PX जो है वो आपका X एक्सिस पर है और Y जो है आपका Y एक्सिस है, यानी कि जैसे क्रॉस बनता है ना, क्रॉस में जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वो X है, अगर इसको तो ये दोनों में कभी कंबाइन कर ही नहीं पाएंगे. XY ओवरलैप कैसे करेंगे? अभी आपको इसके एग्जांपल दिखाएंगे तो समझ में आएगा. X के साथ X ओवरलैप करेगा, Y और Z ओवरलैप, क्योंकि X में हमेशा हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी और Y में हमेशा साइडवाइज ओवरलैपिंग. इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So come to the example. First is the SS overlapping. ठीक है, SS overlapping जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड. अब देखिए SS overlapping में कैसे ओवरलैपिंग हो रही है, S is orbital spherical in shape. जब ये ओवरलैप करेंगे तो ओवरलैप जो सिग्मा बॉन्ड का, तो ये जो ओवरलैप पार्ट है वहां पर क्या है, सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन, यानी कि जो आपका जो शेड पेड़ आने का कहां पर है, ओवरलैप पार्ट. This is called SS overlapping. Example is given for hydrogen. हाइड्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1s1. तो 1s ऑर्बिटल, दोनों हाइड्रोजन एटम का 1s ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे, will come close to each other and will overlap. Overlap करेंगे, there will be SS overlapping and the formation of sigma bond that leads to the formation of hydrogen molecule. Second is the, देखिए सिग्मा, ये तो आपकी सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन तक है. अब सिग्मा और पाई बॉन्ड फॉर्मेशन, जैसे SS ओवरलैपिंग पे हमेशा आपको सिग्मा बॉन्ड मिलेगा. SP ओवरलैपिंग जब होगी देन SP ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा. इसमें P जो है वो S, आपका P S स्फेरिकल शेप है, P जो है डबल शेप है, तो एंड टू एंड ओवरलैपिंग से देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ द सिग्मा बॉन्ड.
और पी एक्स जब ओवरलैप करेंगे तब क्या होगा, पीपी ओवरलैपिंग से एंड टू एंड ओवरलैपिंग से फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा। जब पी वाई एंड पी जेड ओवरलैपिंग है, ये पी जेड के साइडवाइज ओवरलैपिंग है, द फॉर्मेशन ऑफ पाई वन। This figure is showing actually the formation of sigma and pi bond. Next video क्या है? नेक्स्ट पेज क्या बेटे? sp ऑर्बिटल जहाँ पे है sp ओवरलैपिंग, इसको बेटा sp ऑर्बिटल की जगह sp ऑर्बिटल ओवरलैपिंग लिख लीजिएगा, ठीक है? sp ऑर्बिटल ओवरलैपिंग। हाँ, ये वाला पेज नहीं मुझे, अनुष्का, हाँ ठीक है, ओके, ठीक है। तो देखिए अब पहले आपको क्या बताया, एस एस ओवरलैपिंग, तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में कौन आएगा, एस एस ओवरलैपिंग। इसके बाद नेक्स्ट होगी sp ऑर्बिटल ओवरलैपिंग। sp ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कहते हैं कि जहां पर एक एटम का s ऑर्बिटल दूसरे एटम के p ऑर्बिटल के साथ क्या बनेगा, एंड टू एंड ओवरलैपिंग करेगा, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो s ऑर्बिटल के लिए जैसे मॉलिक्यूल हमने कौन सा लिया, HF, हाइड्रोजन फ्लोराइड। तो हाइड्रोजन के पास सारे इलेक्ट्रॉन 1s1, फ्लोरीन के पास आउटर रिएक्शन में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1s2 2s2 2p2 2p मतलब 2p5 है। 2p5 को कैसे बाइफरकेट किया गया, 2px2 2py2 एंड 2pz1। सो आउटर मोस्ट प्लस वन, दोनों बोथ द एटम्स आर इलेक्ट्रॉन डेफिनेशन, सो देयर विल बी कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। और कोवेलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म करेगा, कि 2pz ऑर्बिटल ऑफ द फ्लोरीन। हाइड्रोजन एटम है, इट इज जो है वो शोन बाय द स्फेरिकल शेप, और पी को किस पे, पी एक्स पी वाई और पी जेड एक्सिस पे शो, ठीक है? तो पी एक्स आपका क्या करेगा, इसके साथ सिग्मा बॉन्ड बना, ओवरलैपिंग ओवरलैप पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो HF मॉलिक्यूल इसी तरीके से H2O मॉलिक्यूल आता है, ठीक है? H2O मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन 1s1, ऑक्सीजन 1s2 2s2 2px2 2py1 2pz1, यानी कि y और z दोनों के क्या है, आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन। तो इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कंबाइन करेंगे, एक किसके साथ, y के साथ, और एक किसके साथ, z के साथ ओवरलैपिंग करेगा, एंड टू एंड ओवरलैपिंग। So the formation of water molecule single bond formation between H and O. तो ये एक ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के साथ सिंगल बॉन्ड बनाएगा। एक ऑक्सीजन कहाँ से शेयरिंग हो रही है, सॉरी शेयरिंग नॉट, हाँ म्यूचुअल शेयरिंग किसके साथ हो रही है, पी एक्स ऑर्बिटल पी वाई ऑर्बिटल से, और दूसरे पी जेड ऑर्बिटल जो है वो हाइड्रोजन के एस ऑर्बिटल से कंबाइन, ठीक है? सिमिलरली इन केस ऑफ द NH3, नाइट्रोजन के 1s2 2s2 2p3, तो 3 इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होंगे एक्स में, px1 py1 pz1। अब ये तीनों जो है वो एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तीनों ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन का स्पेस, तो 3 हाइड्रोजन एटम यानी कि 1s1, 3 हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल जो है वो इसके साथ ओवरलैप करेंगे and will form the sigma bond or the single bond. So the formation of, अभी बाद में आपको वाटर और अमोनिया का जो स्ट्रक्चर होता है ये हम आपको डिस्कस करेंगे बाद में, तो थोड़ा सा बॉन्ड एंगल जो होता है वो बैठने की वजह से चेंज हो जाता है, इसको बाद में डिस्कस करेंगे, अभी बॉन्डिंग बताने के बाद। नेक्स्ट है आपका पीपी ओवरलैपिंग। पीपी ओवरलैपिंग
PP ओवरलैपिंग ये सिग्मा बॉन्ड का सब जो है हेड ऑन ओवरलैपिंग। तो PP ऑर्बिटल में हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी और साइडवेज दोनों ओवरलैपिंग होगी। जब P और P ऑर्बिटल कंबाइन ओवरलैप करेंगे, when the covalent bond formation takes place by the overlapping of PP orbital, then the both type of overlapping that occurs, like the head-on overlapping and the sidewise overlapping. तो head-on overlapping में जैसे एग्जांपल लिया हमने फ्लोरीन मॉलिक्यूल, अगेन PZ, यानी कि इसके इंटर सेम एक्सिस पे जो मॉलिक्यूल होंगे वो क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे. So you can see here that will combine by the head-on overlapping and the formation of the fluorine molecule and single bond formation takes place. Next is the मैम हाँ एक बार इसको हम दोबारा रिपीट कर दीजिए जो मैम अभी आपने बताया था PP साइडवेज साइडवाइज से बताया नहीं बेटा, तो हेड-ऑन अभी हेड-ऑन बताया, हेड-ऑन को रिपीट कर दें. यस मैम वो यस मैम हेड-ऑन को रिपीट कर दीजिए, आवाज बीच में लैग हो रही है. अच्छा, ये आपको डायग्राम विजिबल है बेटा, यस PP मैम ओवरलैपिंग वाला पेज इस पे शेयर भी हो रहा है और आप जो है वो देख भी सकते हो अपनी स्क्रीन पे भेजा है. इस पे खोलिए जरा इसको. यस मैम तो देखिए ये X, Y और Z, these are the three P. किसने पूछा, अमन किसने पूछा? मैम लैग हो रहा है मैम, कुछ भी आवाज नहीं आ रही. किस बच्चे ने बोला रिपीट करने के लिए? हाँ अमन. यस मैम और टूल में कन्वर्ट होने के लिए बोथ फ्लोरीन एटम रिक्वायर्स ओनली वन इलेक्ट्रॉन. There is sharing of 2 electron for bond. Then there is sharing of 3 electron formation of triple. तो सिंगल बॉन्ड जो बनता है that is formed by the sigma bonding. और the SS और F2 और V2 overlapping, और you can see by the head-on overlapping. So head-on overlapping में फ्लोरीन में क्या है, फ्लोरीन रिक्वायर ओनली 1 इलेक्ट्रॉन. दोनों फ्लोरीन एटम को एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए. तो ये you can see the electronic configuration कि एक p ऑर्बिटल के लिए आप फील्ड है और ओवरलैपिंग के लिए नेसेसरी कंडीशन नहीं कि आप फील्ड होना चाहिए, अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होना चाहिए. तो जिस ऑर्बिटल में अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वही ओवरलैप करेगा. तो इसके पास क्या है, आपका एक इलेक्ट्रॉन पीजेड में, अब ये पीजेड फ्लोरीन की दूसरी पीजेड से क्या करेगा, ओवरलैप करेगा. कैसे ओवरलैप करेगा, बाय द एंड टू एंड और हेड ऑन ओवरलैप. तो ये in resultant molecule F2 molecule you can see the एक फ्लोरीन एटम का हेड और दूसरे फ्लोरीन एटम का हेड दोनों ओवरलैप करके बड़ा ऑर्बिटल बना रहे हैं. and the shared pair of electron reside in this overlap part and the formation of sigma bond takes place. ठीक है, this example oxygen molecule. Hello, am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, So in oxygen atom, देखिए there are 2 vacant orbitals, Py Pz पे आपके vacant है. दोनों जो है वो दूसरे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, these orbital will be completely filled. 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए. तो एक तो आपका हेड ऑन ओवरलैपिंग हो गया, सिग्मा बॉन्ड बन गया, और दूसरा क्या है, जो पी वाई है आपका वो क्या करेगा, पी वाई या पी जेड एक कोई जो दूसरा साइड वाइज ओवरलैपिंग करेगा. यू कैन सी द डायग्राम. ऑक्सीजन, देयर आर 2 ऑक्सीजन एटम.
px py pz ऑर्बिटल, pz को किससे रिप्रेजेंट किया गया, सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन, और y जो है वो ओवरलैपिंग साइड वाइज ओवरलैप। ठीक है, तो सिग्मा बॉन्ड किससे बन रहा है आपका, pz pz का एंड टू एंड ओवरलैपिंग से, और साथ में डबल बॉन्ड में सिग्मा के साथ एक डबल बॉन्ड, एक और बॉन्ड बना, देन इट बिकम अ डबल बॉन्ड, और ये जो दूसरा बॉन्ड बना दिस इज फॉर्म्ड बाय द पार्शियल शेयरिंग और द साइड वाइज शेयरिंग, साइड वाइज ओवरलैपिंग, so double bond oxygen molecule. Now come to the triple bond. Triple bond is present in the nitrogen molecule. ठीक है, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन 1s2 2s2 2p3, यानी कि all three p orbitals are half filled. x में 1 इलेक्ट्रॉन, px1 py1 and pz, ठीक है, ये तीनों p ऑर्बिटल आपके हाफ फिल्ड, तो ये तीनों क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे, दूसरे नाइट्रोजन एटम से these three orbitals will overlap. You can see the diagram, one nitrogen atom showing all three orbitals px, py and pz. तो जब when these orbitals will come in close proximity to each other, तो सबसे पहले क्या होगा, जो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस ऑर्बिटल है वो पास आएंगे, तो ये ओवरलैप करके एक एक्स में ओवरलैप करेंगे, दिस इज कॉल्ड हेड ऑन ओवरलैपिंग, फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। इसके बाद वाई वाई ओवरलैप किया, और जेड जो है वो जेड से ओवरलैप किया, तो एक वाई वाई ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बना, एक जेड जेड ओवरलैपिंग साइड वाइज से डबल एक बॉन्ड बना, और एंड टू एंड ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बना। सो ट्रिपल बॉन्ड में क्या हो गया, 1 सिग्मा एंड 2 पाई इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 1 सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द एंड टू एंड ओवरलैपिंग ऑफ द ऑर्बिटल, और जो पाई बॉन्ड है वो कैसे बना, बाय साइड वाइज ओवरलैपिंग ऑफ द py and pz orbital. By this way nitrogen molecule has triple bond, oxygen has double bond, hydrogen has single bond. So hydrogen में ss ओवरलैपिंग से बना, ऑक्सीजन में pp ओवरलैपिंग से बना, नाइट्रोजन में भी pp ओवरलैपिंग से बना, ठीक है। ये तो सिग्मा एंड पाई बॉन्ड फॉर्मेशन, दिस इज द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बेसिकली एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ सिंगल डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, मींस द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। So according to valence bond theory, the sigma and pi bond formation takes place by the overlapping of the half-filled orbitals having at least one unpaired electron and their empty space. यानी कि केवल वही ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे जिनमें एक कम से कम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो और उनकी स्पिन क्या हो, एंटी स्पिन। और एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग किस पर डिपेंड करेगा, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स, फर्स्ट इज द नेचर ऑफ द ऑर्बिटल और दूसरा आपका एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। नेचर ऑफ ऑर्बिटल यानी कि जो सेम एनर्जी का ऑर्बिटल है वो एक दूसरे से कंबाइन करेंगे, और जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग है वो किस पर डिपेंड करेगा, एनर्जी पे, यानी कि जो जितने नीडेड शेल होगा न्यूक्लियस की उतना ही ज्यादा एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होगा। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इसके अलावा जो डायरेक्शनली कॉन्सेंट्रेटेड आपके ऑर्बिटल्स हैं दैट विल शो मोर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, एंड टू एंड और हेड ऑन ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग इज अ टू टाइप, एंड टू एंड और हेड ऑन ओवरलैपिंग, और साइड वाइज और लेटरल ओवरलैपिंग। तो लेटरल ओवरलैपिंग में extent of overlapping is less as compared to the head-on overlapping. So the pi bond which is formed by the lateral side overlapping is weaker as compared to the sigma bond. Sigma bond is a strong bond.
but the bonds like double and triple bond in which sigma and pi bond, both bonds are present, these bonds are stronger bonds. यानी कि triple bond अगर if we compare single, double and triple bond, तो जो triple होगा, triple will be more stronger than the double. ठीक है, तो they will start with the MOT. इसके भी कुछ एग्जांपल्स भी आपको बताएंगे, जैसे वाटर और अमोनिया में there are some bend shape और hybridization. ठीक है, hybridization और some special molecules like water and ammonia का structure will discuss in next class, और उसके बाद MOT start करेंगे. Okay.